Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today we will continue the same topic, which is morphological image processing. So in the last lecture we have discussed that morphological image processing, what it means, what are the definition of it, and how do we convert the image into set point theory, because we need to apply some set theory equations and different formulations. So for that we need to formulate the image into set points. So for that we need also a structuring element that is like kernel we call it, or if you want to remember it in a form, then it is like a mask that we apply on the image. So the structuring element is a little bit of different from the mask, but it works more or less similar because it's scaling, it's scanning above the image, and it's continuously moving and making the changes in the image. And then we also learned that what are the morphological operations, that one of the operation is dilation and another one is erosion. So what do we mean by dilation? So we normally add some points to the object, and then in erosion what we do, we remove the points from the edges of the object. So today we will continue and we will cover some more morphological operations, and they are very important because we want to have some region to fill, and if we want to open some areas, like if there is a circle and that circle is quite thick and we want to make it thin, then how do we do it, and also some other boundary extraction methods, and also want to have some filling methods and some other morphological operation that we will discuss today. So first of all, what we will need to learn is closing. So what it means by morphological closing, closing is similar in some ways of dilation, in that it tends to enlarge the boundaries of the foreground bright region in an image and shrink background color holes in some regions, but it is less destructive of the original boundary shape as with other morphological operators. The exact operation is determined by the structuring element. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्लोजिंग में हम डायलेशन अप्लाई करते हैं. डायलेशन मोरलेस डायलेशन होता है, हम बाद में उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं. तो डायलेशन जब हमने देखा था तो उसमें हम सिंपली जो ऑब्जेक्ट है उसको थिक कर देते हैं, उसकी बाउंड्रीज को इनलार्ज कर देते हैं, और जो स्मॉल उसके अगर कोई डॉट्स हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो हम उनको फिल कर देते हैं. तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली इसी तरह करेंगे, लेकिन हम ओरिजिनल शेप पे वापस जाएंगे क्लोजिंग के लिए. तो इस सिचुएशन में जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होते हैं उनके स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हम अभी इस अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उससे क्या जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आएगा. तो टोटली हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. Effect of the operator is to preserve background regions that have a similar shape to this structuring element. तो हम सिंपली क्या करते हैं कि वो इफेक्ट जो है वो प्रिजर्व करता है जो बैकग्राउंड रीजन्स है उनको, द सिमिलर शेप टू दिस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. जो हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है तो वो उनको बेहतर करने के लिए हम सिंपली जो बैकग्राउंड है वो हम रिमूव कर देते हैं या उसको एनहांस कर देते हैं, और दैट कैन कम्प्लीटली कंटेन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वाइल द एलिमिनेटिंग ऑल अदर रीजन्स ऑफ बैकग्राउंड पिक्सेल्स. और हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड का रीजन है उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं, स्मॉल रीजन हैं, उनको सबको रिमूव कर दें हम. सो व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर इट? वन ऑफ the use of dilation is to fill in small background color holes in the image. Paper noise, हमने जब डायलेशन देखा था तो डायलेशन में हमने ये देखा था कि नॉर्मली जो
स्मॉल होल्स हैं वो हम बड़ी इजीली डायलेशन से रिमूव कर सकते हैं. वन ऑफ द प्रॉब्लम विद डायलेशन इज हाउएवर is that the dilation will also distort all regions of pixel indiscriminately. तो हम जब देखते हैं कि जब हम डायलेशन अप्लाई करते हैं तो उसका ड्रॉबैक हमारे पास एक ये था कि हम जो स्ट्रक्चर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको इनलार्ज कर देते हैं, उसके साइज़ को बढ़ा देते हैं. तो वो हमारे पास वो रिजल्ट्स नहीं होते जो ओरिजिनल इमेज या ऑब्जेक्ट के होते हैं. जिस तरह आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने एक इमेज देखा था जिसमें एक पर्सन थे और वो इमेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डॉट्स थे. तो जब वो डॉट्स हमने रिमूव कर दिए तो वो इमेज जो था वो थोड़ा सा जूम इन टाइप का हो गया था, वो लार्ज हो गया था. तो वो लार्ज होने की वजह से वो जो उसके पिक्सल्स थे या उसके वैल्यूज़ थे वो डिस्टॉर्टेड हो गए थे. बाय परफॉर्मिंग एन इरोजन ऑन द इमेज आफ्टर द डायलेशन, अगर तो हम डायलेशन के बाद दोबारा इरोजन अप्लाई करते हैं तो हम इस प्रोसेस के साथ हम सिंपल उस इमेज को रीओरिएंट कर लेते हैं. हम अपने उसके ओरिजिनल लोकेशन पर ले जाते हैं, जो उसके ओरिजिनल डायमेंशंस थी, तो हम उस पर लेकर चले जाते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ क्लोजिंग. वी रिड्यूस सम ऑफ दिस इफेक्ट. द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग कैन बी quite easily visualized. Image taking the structuring element and sliding it around outside each foreground region without changing its orientation. तो हम सिंपली इस इफ़ेक्ट से क्या करते हैं कि हम जो बाउंड्रीज़ हैं उनके ऊपर हम कोई ऐसा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जिससे सिर्फ उनके बाउंड्रीज़ जो हैं वो असरअंदाज हो, ना कि हम जो इनर पार्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें. तो अगर हमारे पास कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियर नहीं है, वो उसमें कुछ नॉइज़ है या वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, कुछ ऐसे पिक्सल्स हैं जो उसमें मिसिंग्स हैं, तो हम इस सिचुएशन में उसको बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं अगर तो हम उसके बाउंड्रीज़ के लिए स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सेलेक्ट करें. फॉर एनी बैकग्राउंड बाउंड्री पॉइंट, if the structuring element can be made to touch that point without any part of the element being inside a foreground region, then that point remains background. तो हम यहाँ पर simply अगर कोई ऐसा point है जिसके साथ हमारा foreground का कोई भी point attach नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पर उस पर कोई असरअंदाज नहीं करते. If this is not possible, then the pixel is set to foreground. और अगर ये ना हो तो हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं. आफ्टर द क्लोजिंग हैज़ बीन कैरिड आउट, द बैकग्राउंड रीजन विल बी such that the structuring element can be made to recover any point in the background without any part of it. Also, covering a foreground point, and so further closing will have no effect. This property is also known as idiomorphism. हम इसको सिंपल इन अल्फाज में ले सकते हैं कि अगर तो हम सिंपल डायलेशन अप्लाई करते हैं तो डायलेशन से हमारे पास जो इमेज का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो उसके पॉइंट्स हैं हम उनको जो नॉर्मल बॉर्डर्स पर कोई पॉइंट्स हैं या जो हमारे पास पेपर नॉइज़ आ रहा है वो वाले पॉइंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो इसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं कि इमेज के ऊपर दोबारा इरोजन अप्लाई कर देते हैं. तो इरोजन से हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो वापस ओरिजिनल सिचुएशन में चली जाएंगी. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं तो हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरह करेगा. अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में हम देख सकते हैं कि दो किस्म के हमारे पास नॉइज़ आ रहे हैं. एक नॉइज़ ये पॉसिबल है कि ये जो दो हमारे पास एरियाज़ हैं यहाँ पर ये एम्प्टी है और ये पॉसिबिलिटी है कि ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट हो, लेकिन नॉइज़ की वजह से ये दो पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास एज अ नॉइज़ आ रहे हैं. और दूसरा हम देख सकते हैं कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बिल्कुल थिन लाइन है और वो थिन लाइन जो है 1 पिक्सल पर
डिपेंड करता है और वो 1 पिक्सल के ऊपर वो सारा डेटा इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्योंकि इतनी 1 पिक्सल इसकी विड्थ है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास नॉइज़ हो। तो हम इन दोनों किस्म के नॉइज़ को रिमूव करने के लिए क्लोजिंग और ओपनिंग अप्लाई करेंगे। तो वो पहले हम क्लोजिंग को देखते हैं कि उसके लिए हम अगर सिंपल लेते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो और वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b के साथ, और हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में हम सारे जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं। मतलब ये कि हम इन सारे जो वैल्यूज़ हैं इनको कंसिडर करते हैं और इसका जो इफ़ेक्ट है वो इस जो हमने सारे इसके नाइबर्स हैं इनको कंसिडर किया, और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा है। और हम देखते हैं कि ये जब हम अप्लाई करेंगे तो इससे सिंपली हमारे पास इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि जितने भी इसके बाउंड्री रीजन्स हैं वो सारे जो हैं फुलफ़िल हो जाएंगे। सिंपल अगर हम इसके ऊपर डायलेशन अप्लाई करते हैं तो डायलेशन का इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होगा कि जो ये रीजन्स हैं ये भी फिल हो जाएंगे अगर आप डायलेशन सिंपली अप्लाई करते हैं, और जो हमारे पास ये रीजन्स हैं ये भी सारे फिल हो जाएंगे। तो अब ये हमारे पास सारा डायलेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो सिंपली जो भी इसके बाउंड्री सेल्स हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो रहे हैं, और उसकी सिंपल वजह यह है कि जो हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सेलेक्ट किया है वो ऐसा है कि वो सिर्फ इनके बाउंड्रीज को इनलार्ज कर देगा और बाकी उसमें कोई असर नहीं डालेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास इस डायलेशन की वजह से फुलफिल हो गए हैं। तो ये हमारे पास अब आउटपुट आ जाएगा। तो ये अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा तो वो सिंपली अब ये हमारे इमेज का साइज आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें ये भी काउंट होगा। तो ये हम देखते हैं कि ये जो इमेज है अब इनलार्ज हो गया और साथ में ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी हमारे पास फुलफिल हो गए। तो हमने सिंपली क्या किया कि हमने x डायलेशन b लिया। तो ये हमारे पास x डायलेशन b के रिजल्ट्स आ गए। अब अगर हम इसके बाद सिंपली अप्लाई करते हैं इरोजन, तो इरोजन की सिचुएशन में क्या होगा कि अब सेम इमेज है हमारे पास और इसके ऊपर हम इरोजन अप्लाई करेंगे। तो इरोजन की सिचुएशन में हम सिंपली ये देखते हैं कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास वहाँ पर रह जाएंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम इरोजन अप्लाई करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये रिमूव हो जाएंगे, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमने डायलेशन की बेसिस पर हमने फिल किए थे, अब ये हमारे पास सेम इसमें ऑब्जेक्ट के पार्ट के तौर पर काउंट होंगे, क्योंकि ये इरोजन की बेसिस पर रिमूव नहीं होंगे। तो हमारे पास अब जो फाइनल फार्मूला आता है तो वो सिंपली ये आएगा कि x
x डॉट b, जो b हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, तो वो क्लोजिंग के सिचुएशन में हम क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करते हैं फिल डॉट के साथ। तो ये हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला ये आएगा कि x डायलेशन विद b, और फिर हम उसका सिंपली इरोजन लेते हैं b के साथ। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आएगा क्लोजिंग के लिए। तो क्लोजिंग में हम सिंपली उन पॉइंट्स को क्लोज कर देते हैं जो ऑलरेडी ओपन है, और हम ये समझते हैं कि ये इमेज का पार्ट है। तो पहले एनलार्ज कर देते हैं उसकी बाउंड्रीज को, और फिर उसके बाद जब हम इरोजन अप्लाई करेंगे तो इरोजन से वो सारे जो बॉर्डर्स एरियाज हैं वो वापस अपने ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलस्ट्रेट किया गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट को हम जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो बी के साथ इसमें चेंजेस लाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सर्कुलर शेप में हमारे पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। तो पहले हम सिंपली इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, तो चूंकि ये राउंड है तो ये जो एरियाज हैं हमारे पास ये शेप उसकी आ जाएगी राउंड होने की वजह से। तो हम इसको सिंपली जब इनलार्ज कर देते हैं, तो इनलार्ज करने से हम जब अप्लाई करते हैं डायलेशन, तो डायलेशन करने से हमारे पास ये वाले रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारा एरियाज डायलेशन में आ जाएगा। तो टोटल जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो एग्जैक्टली यहाँ से आएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर सिंपली जो भी रिजल्ट्स इधर से आएगा उसके बाद हम उसके ऊपर सिंपली इरोजन अप्लाई करते हैं। तो जब इरोजन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस आउटपुट रिजल्ट ये आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया था, ये जो रिमेनिंग एरिया था, और यहाँ पर जो ये स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये हमारे पास इधर एक कम रह गई है। ठीक है, और दूसरा ये जो एरिया था हमने इसको फिल कर दिया है। तो यहाँ अब टोटली डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या है, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट राउंड लिया था। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ये अभी जो बिल्कुल कॉर्नर्स बन रहे थे अब वो राउंड शेप में आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो एग्जैक्टली इस तरह है। अगर हम रेक्टेंगल लेंगे तो उस सिचुएशन में हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो क्लोजिंग से क्या होगा, सिंपली हम जितने भी हमारे पास एरियाज हैं जो एम्प्टी हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, और अगर हम क्लोजिंग अप्लाई करते हैं तो क्लोजिंग से ये जो सारे एरियाज थे ये फिल हो गए हैं, और यहाँ पर जो ये एरिया था इसको हमने फिल कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि जो पॉइंट इंडिपेंडेंट हैं हम उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो जिस तरह हैं उसी तरह हमारे पास रह गए हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट जो कि नियर है, जो कि हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के नाइबर्स में आ सकता है, तो हम उस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की बेस पर उसके साइज पे बेस करते हुए इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इसमें भी काफ़ी बड़ा हो तो वो इनको भी इंक्लूड कर देगा, लेकिन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ सिंपल हमने जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया है वो 3x3 स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब इससे हमारे पास क्या एप्लीकेशंस आ सकती हैं, हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एन इमेज कंटेनिंग लार्ज होल्स एंड स्मॉल होल्स, इफ इट इज़ desired to remove the small holes while retaining the large holes, then we can simply perform closing with a disc shape structuring element with a diameter larger than the smaller holes but similar than the larger holes. तो अब हमारा अगर सिंपल इसमें ये मकसद है कि ये एक इमेज है जिसमें ऑब्जेक्ट है वाइट कलर का, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास होल्स हैं, डिफरेंट किस्म के होल्स हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो स्मॉल होल्स हैं ये रिमूव हो जाएं और जो लार्ज होल हैं ये हमारे पास आ जाए, ताकि हम इसको काउंट कर सकें इजीली, या हम इसकी मेजरमेंट कर सकें। टोटली इस पर डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा
कि जब हम इस पे अप्लाई करना चाहेंगे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, तो क्योंकि ये राउंड शेप में है तो मोस्ट प्रेफरेबली हमें चाहिए कि सिंपली राउंड शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लें। तो अब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब राउंड शेप का लेंगे तो वो इस स्मॉल साइज से बड़ा होना चाहिए ताकि वो इसको एलिमिनेट कर सके। और जो बड़ा हमारे पास है साइज़, तो अगर हम एग्जैक्टली वही साइज़ रिटेन करना चाह रहे हैं तो फिर तो एग्जैक्टली इसी साइज़ का होना चाहिए ताकि जो स्मॉल होल्स हैं वो रिमूव हो जाएं और ये इसके ऊपर कोई असर ना पड़े। तो हम सिंपली जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो स्मॉल होल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और जो हमारे पास ये बॉर्डर लाइन है ये भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो पिक्सेल्स हैं ये काफ़ी स्मॉल हैं और जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है अगर वो इस साइज़ का है तो वो इनको एलिमिनेट कर देगा। द इमेज इज़ द रिजल्ट्स ऑफ क्लोजिंग विद अ 22 पिक्सल डायमीटर डिस्क। तो यहाँ पर हमने 22 पिक्सल डायमीटर डिस्क को अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओपनिंग की, कि ओपनिंग हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। द बेसिक इफेक्ट ऑफ ओपनिंग इज़ समवट लाइक इरोजन। हम इरोजन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं इन दैट इट टेंड्स टू रिमूव सम ऑफ द फोरग्राउंड ब्राइट पिक्सल फ्रॉम द एजेस ऑफ द रीजन्स ऑफ द फोरग्राउंड पिक्सल्स। तो हम इसमें इरोजन में सिंपली क्या करते हैं कि हम जो बैकग्राउंड है उसको फोरग्राउंड के जो पिक्सल्स हैं उसके साथ स्वैप कर देते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम उसको श्रिंक कर देते हैं, उसके जो बॉर्डर्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, तो उसका जो साइज़ है हम वो कम कर देते हैं। हाउएवर इट इज़ लेस डिस्ट्रक्टिव देन इरोजन इन जनरल। तो अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो ओपनिंग जो है वो लेस डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि जब हमने बात की थी इरोजन की, तो इरोजन में वो जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑब्जेक्ट का वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम उसको स्क्वीज़ कर देते हैं, उसको श्रिंक कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में इसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो इतनी नहीं होती जितनी हमारे पास इरोजन की होती है। असर थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन जो हम स्टेटिस्टिक्स में देखें तो बहुत कम असर पड़ता है कंपैरेटिवली इरोजन के। As with other morphological operator, the exact operation is determined by the structuring element। और यहाँ पर अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि आप कौन सा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई कर रहे हैं, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इफेक्ट क्या आएगा। The effect of the operator is preserve foreground regions that have a similar shape to the structuring element or that can be completely contain a structuring element while eliminating all other regions of the foreground pixel। तो यहाँ पर हम सिंपली ये करते हैं कि जो फोरग्राउंड है उसके पिक्सल्स को श्रिंक कर देते हैं और जो हमारा बैकग्राउंड है उनके पिक्सल्स के साथ उसको स्वैप कर देते हैं। तो अगर तो कोई ऐसा पॉइंट है जो कि कम्प्लीटली सेपरेट है तो ऑब्जेक्ट से, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। अगर तो उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है, जो हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है अगर उससे वो स्मॉल है तो वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। अगर तो वो उसके इक्विवेलेंट है या उससे साइज़ में बड़ा है तो फिर हम उसके चंद जो हमारे पास बॉर्डर्स के पिक्सल्स हैं या पॉइंट्स हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। सो व्हाट इज़ द गाइडलाइंस फॉर यूजिंग ओपनिंग morphological operation? While erosion can be used to eliminate small clumps of undesirable foreground pixels, that salt noise, जो हमारे पास salt noise आता है, तो erosion में चूंकि हम उस salt noise को remove करते हैं quite effectively, it has the big disadvantage that it will affect all regions of the foreground pixel. Opening gets around this by performing both an erosion and dilation on the image। अब हम चूँकि जो ड्रॉबैक है हमारे पास इरोजन का वो ये है कि अगर कोई ऐसे पॉइंट्स जो कि वैल्यूबल थे तो वो इनको भी रिमूव कर देता है, क्योंकि हम जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं उसकी वजह से जो पॉइंट्स ऑब्जेक्ट से दूर होंगे तो वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे।
और दूसरा यहाँ पर हम ओपनिंग में क्या करेंगे कि अगर हम ओपनिंग अप्लाई करते हैं तो ये जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और उसकी वजह ये है कि पहले हम इरोजन अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद हम डायलेशन अप्लाई करते हैं। हमने लास्ट क्लोजिंग में देखा था कि क्लोजिंग में हम पहले डायलेशन अप्लाई करते हैं फिर क्लोजिंग अप्लाई करते हैं, इरोजन अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हम पहले इरोजन अप्लाई करेंगे और बाद में डायलेशन अप्लाई करेंगे। द इफेक्ट ऑफ ओपनिंग कैन बी क्वाइट इजीली विजुअलाइज image taken the structuring element and slide it around inside each of the foreground region without changing its orientation। तो जब हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो हमें जब उसकी ओरिएंटेशन को हम चेंज ना करें तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं एग्जैक्टली अपने डिज़ायरेबल आएंगे। All pixel which can be covered by the structuring element with the structuring element being entirely within the foreground region will be preserved। तो अब इस सिचुएशन में जो भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं और वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से स्मॉल होते हैं उसमें सारे वैल्यूज़ आ जाते हैं, तो वो सारे वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिजर्व रहेंगे। However, all the foreground pixel which cannot be reached by the structuring element without part of its moving out of the foreground region will be eroded away. After the opening has been carried out, the new boundaries of the foreground region will all be such that the structuring element fits inside them, and so further opening with the same element has no effect। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास सिंपली ये है कि अगर हम लास्ट वाली इमेज को कंसिडर करें और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स थे ये हमने ओपनिंग क्लोजिंग के साथ इसको क्लोज कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है जिसको हम नॉइज़ समझ रहे थे हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो इस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स थे लास्ट क्लोजिंग के अंदर हमारे पास क्लोज हो गए थे, इन पॉइंट्स को हमने फिल कर दिया था। अब हम सिंपल यहाँ पर ये करेंगे कि इसको रिमूव करेंगे। तो अगर हमने इसको रिमूव करना है तो जब हम इरोजन अप्लाई करेंगे सबसे पहले, और ये हमारे पास बी है जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है सारे के सारे उसके जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगल टाइप में आ रहा है। और इसका जो सेंटर है हमारे पास यहाँ पर है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हम इरोजन अप्लाई करते हैं तो इरोजन ऑफ ये अगर हम इस पूरे इमेज को कंसिडर करते हैं एज अ एक्स, ठीक है, तो एक्स के तौर पर ये होगा और ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो गया। एक्स इरोजन विद बी हमारे पास क्या आएगा कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, और उसकी वजह ये है कि जो भी उसके बाउंड्री वैल्यूज़ आएंगी वो सारे के सारे इरोजन में आ जाएंगी। तो अब हमने चूंकि इरोजन अप्लाई किया तो ये सारे पॉइंट्स रिमूव हो गए, और हमारा मकसद ये था कि हम इसको रिमूव करें, तो अब ये भी रिमूव हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसके ऊपर सिंपली डायलेशन अप्लाई करेंगे तो डायलेशन क्या होगा कि अगर और जो भी आउटपुट हमारे पास आया इसके बाद हम उस पर डायलेशन अप्लाई करें, तो डायलेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेम हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया और उसके साथ हमने डायलेशन अप्लाई किया। तो डायलेशन से हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे रिमूव हो जाएंगे।
डायलेशन से जब हमारे बाउंड्रीज थे जो हमने रिमूव की थी, अब वो वापस अपने लोकेशंस पर आ गई। और यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब हम बाउंड्री ऐड करेंगे तो वो हर एक डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ भी बाउंड्रीज जो हमने रिमूव की थी इरोजन से, वो अब डायलेशन की वजह से उसमें ऐड हो जाएंगी वापस। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये दोबारा ऐड नहीं होंगी, क्योंकि ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, हम यहाँ पर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ था। तो अगर हम इसको डिफरेंट कलर देते हैं तो ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं ये अब रिमूव हो गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहाँ अभी ये वाले पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ओपनिंग में हमने क्या किया कि जो हमारे पास ऐसे एरियाज थे जो कि नॉइज़ के तौर पर हम काउंट कर रहे थे, और हम ये समझ रहे थे कि ये क्योंकि 1 पिक्सल विड्थ है इसकी, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव करेंगे तो हम उसके लिए सिंपली ओपनिंग अप्लाई करेंगे, और ओपनिंग के लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो हमारे पास सिंपल आएगा कुछ इस तरह x, और ओपनिंग के लिए हम ओपन सर्कल लेते हैं और b के साथ उसकी ओपनिंग देखते हैं, तो वो आएगा सिंपल फार्मूला जो ये ऑलरेडी है, x erosion with b and then dilation output of this with dilation of b। तो अब ये हमारे पास सिंपल ओपनिंग का रिजल्ट आएंगे। तो हम इसको देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो सिंपल ये है, तो हमने चूंकि देखा कि सिंपल हमने जब ओपनिंग अप्लाई करना होगा तो ओपनिंग के लिए हमें पहले इरोजन अप्लाई करना है। तो अब इसके ऊपर अगर हम इरोजन अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इसका साइज़ जो है वो एग्जैक्टली इस एरिया के मुताबिक आ रहा है। तो अब चूंकि वो इस साइज़ का है तो वो जितना भी उसके साइड के पॉइंट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और जो सेंटर उसका है वो बिल्कुल बॉर्डर पर आएगा। वो बॉर्डर पर मूव करते हुए उसके बाहर जितने भी वैल्यूज़ होंगे तो वो उनको रिमूव करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चूंकि सेंटर हमारा इधर है और इसके बॉर्डर पे सिर्फ एक एक पिक्सल या एक एक एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन में होंगे तो हमारा जो सेंटर है वो इधर आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर सेंटर इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, जब हम इरोजन कर रहे होंगे तो इरोजन किस केस में हमें सिंपल क्या करना होगा कि जब हम इसको रीड कर रहे होंगे तो हमें जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर रखना होगा। तो जब हम यहाँ पर होंगे तो जब अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो कुछ इस तरह आ रहा है। तो ये अब हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आ रहा है। तो हम अगर रिमूव कर सकते हैं तो सिंपल हम वो वाले पॉइंट्स रिमूव कर सकते हैं जो कि सेंटर के बाहर हैं, लेकिन इनको हम इस वजह से रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि हम इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं और ये जो है यहाँ पर सेंटर आएगा। सेंटर वाले एरियाज को सारों को हम रिमूव नहीं करेंगे और उसके अलावा जितने भी होंगे। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर हैं तो अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, सॉरी, तो अब इस सिचुएशन में चूंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे रिमूव हो जाएंगे। जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। जब हम इधर आएंगे तो ये सारे, तो हम इस जो हमारा जो सेंटर है हम इसको देखते जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो हमारा सेंटर है हम देखते हैं कि वो अगर हम बाउंड्री पे मूव कराते हैं तो सेंटर हमारा इधर आएगा और जो उसका जो शेप है अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। तो अब ये शेप जहाँ भी मूव करेगा तो उसके बाहर के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगे, जो इंटरनल हैं वो रहते जाएंगे। तो इस वजह से ये शेप जब मूव करेगा तो सारे बाउंड्रीज़ को रिमूव कर देगा। अब जब वो यहाँ पर आएगा, चूँकि
इसके दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो वो दोनों साइडों को रिमूव करता हुआ आगे मूव करेगा। जब इधर आएगा तो सेम इसी तरह। तो हम देख सकते हैं कि इरोजन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए और ये जो एरिया था वो रिमूव हो गया। अब हमने ओरिजिनल हालत में इमेज को लाना है, तो हम उसके बाद डायलेशन अप्लाई करते हैं। तो जब हम डायलेशन अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हम इसी तरह जो हमारे पास पॉइंट जहां हमने एडिशन करना है उस सिचुएशन में हम इसके साथ के जितने भी वैल्यूज़ होंगे हम उसको वापस ऐड करते जाएंगे। तो जब हम वापस ऐड करेंगे तो हम इसको जो मूव करेंगे तो सिंपली हमारे पास आउटपुट के तौर पर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं ये रिमेनिंग है यहाँ, और इसकी वजह ये है कि जो हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया था वो हमारे पास राउंड शेप में था, तो वो इन एलिमेंट्स को रिमूव नहीं कर सका। इस वजह से अगर हम रेक्टेंगल लेंगे तो उसमें रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। अब ओपनिंग के क्या हमारे पास यूजेज हो सकते हैं। A binary image containing a mixture of circle and lines. Suppose that we want to separate out the circles from the lines. हमने अगर एक इमेज है हमारे पास जिसमें सर्कल्स भी हैं और जिसमें हमारे पास डिफरेंट लाइंस भी हैं। अब अगर हमने इन सर्कल्स और लाइंस को सेपरेट करना है तो इस अलग अलग करना है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सो दैट दे कैन बी काउंटेड। अगर हम इसको काउंट करना चाहते हैं, ओपनिंग with a disc shape structuring element 11 pixel in diameter gives some of the circles are हम अगर ओपनिंग अप्लाई करते हैं और ओपनिंग में हम सिंपल जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसको 11 पिक्सल के रेडियस में रखते हैं, शेप में रखते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो राउंड शेप्स हैं वो रह जाएंगी और जो हमारे पास लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि जब हम राउंड शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेंगे तो इसमें जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो सारे रिमूव होते जाएंगे। और लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो चूंकि वो जब रीड करेंगे तो इसके सेंटर के पास आएंगे तो इसके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको रिमूव किया जाए तो वो इससे आगे क्रॉस कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास प्रॉपरली राउंड नहीं है और उसकी वजह ये है कि उसके साथ जो ऐड हो रहा है, जो हमारे पास जो उसका लाइन जो है वो उसको एज अ नॉइज़ रीड हो रहा है, तो वहाँ पर वो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है। सम ऑफ द सर्कल्स आर स्लाइटली डिस्टॉर्टेड बट इन जनरल the lines have been almost completely removed while the circles remains almost completely unaffected। हमने जो सर्कल्स हैं उसको completely रिकवर कर लिया है और सारे जो लाइंस हैं उनको रिमूव कर दिया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि लाइंस जो हैं वो किसी ख़ास डायरेक्शन और शेप में आ जाएं या उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास लाइंस हैं। सपोज दैट दिस टाइम वी विश टू सेपरेट एक्सट्रैक्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं हम इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एन ओपनिंग विद अ 3/9 वर्टिकल ओरिएंटेशन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज शोन इन दिस रिजल्ट्स। अगर हमारे पास वर्टिकल है जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो हमारे पास कुछ इस शेप में आ रहा है कि वो 3/9 उसके साइज़ है, तो हम देख सकते हैं कि ये 3 और ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं ये टोटल 9 आ रही हैं। ठीक है, तो हम 9 में लेते हैं और 3, तो अगर हम इस साइज़ का लेंगे तो जो भी हमारे पास वर्टिकल जितने भी होंगे वो हम सारे रिमूव कर सकेंगे। उसको रिमूव का मतलब ये कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और अब अगर हम सिंपल लेते हैं 9/3 का हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में, तो उस सिचुएशन में हमारे पास 9 इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है,
और जो 3 हैं वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अब हम सिंपली अगर अप्लाई करेंगे तो जो बाकी जितने भी शेप्स हैं, लाइंस हैं, वो सारे रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल्स हैं वो रिमेनिंग रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ एरर्स आ रहे हैं और उसकी वजह ये है कि इन एरियाज़ को जब हम टैकल करते हैं तो ये एरर जनरेट करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी आ रहे हैं और सेम इधर भी हम देखते हैं कि ये इन एरियाज़ को एज अ हॉरिजॉन्टल ट्रीट कर रहा है, क्योंकि जो हमने साइज़ लिया हुआ है वो उसमें उसकी वजह से हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओपनिंग गाइडलाइंस जो है हम उसको और भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। द इमेज कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, स्मॉल ब्लैक ones and large gray ones. Thresholding the image at value of 210 yields. अगर हम thresholding करते हैं सिंपली इसको कन्वर्ट करते हैं एज अ बाइनरी इमेज, तो हमारे पास बाइनरी इमेज में इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर 2 किस्म के सेल्स हैं, एक है लार्ज जो डार्क सेल्स हैं और एक हमारे पास स्मॉल सेल्स आ रहे हैं। अब ओपनिंग के लिए हम अगर सिंपली इसको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि कौन से जो लार्ज सेल्स हैं वो कहाँ पर हैं और उसकी तादाद कितनी है, और अगर हमने इसको ऑटोमेटिकली काउंट करना हो तो हम सिंपली उसके ऊपर ओपनिंग अप्लाई करते हैं। वी वांट टू रिटेन ओनली द लार्ज सेल्स इन द इमेज while removing the small ones. This can be done with a straightforward opening using 11 pixel circle structuring element yields. अगर हम सिंपली इसके ऊपर 11 पिक्सल सर्कल्स के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो जो स्मॉल है वो सारे रिमूव हो जाएंगे और जो लार्ज हैं वो हमारे पास एज आउटपुट रह जाएंगे। अब ओपनिंग और क्लोजिंग से हमारे पास क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग एलिमिनेट्स the details. Opening eliminates protrusions and bridges that are too thin. जो हमारे पास उसके जितने भी स्मॉल एरियाज़ हैं या जो ब्रिजेस हैं या प्रोट्रूजन्स उसको कहते हैं, जो कोई फिलिंग एरियाज़ हैं हमारे पास, जो फिल स्मॉल एरियाज़ ऐसे हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मिड में आ रहे हैं या किसी साइड पर आ रहे हैं, तो हम उन एरियाज़ को अगर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ओपनिंग सिंपल उनको एलिमिनेट करता है। क्लोजिंग फिल द गल्फ्स एंड द होल्स दैट आर टू नैरो, और जो हमारे पास जितने भी एरियाज जो कि गल्फ की फॉर्म में होते हैं, जो कि एक किस्म के 2 शार्प पीक्स के दरमियान हों, तो हम उनको सिंपली फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लोजिंग यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास कुछ ऐसे होल्स हैं जिनको हम फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम क्लोजिंग यूज़ कर सकते हैं। दे हैव अ सिंपल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर हम इनको अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखना चाहते हैं, ओपनिंग रिजल्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ ए कवर्ड बाय ट्रांसलेशन ऑफ बी अलोंग द इनर बॉर्डर ऑफ ए। तो अगर हमारे पास ए एज अ ऑब्जेक्ट है और हम सिंपल ओपनिंग करते हैं, तो ओपनिंग के लिए हमारे पास अगर बी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में हम ओपनिंग से हम क्या कर सकेंगे कि जो भी हमारे पास उसके इनर एरियाज़ हैं, बॉर्डर्स हैं, वो उनको बॉर्डर्स ऑफ इनर एरियाज़ जो हैं उसके साथ मूव करते हुए सारे जो इनर पार्ट्स हैं उनको वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसके रिजल्ट्स आते हैं कि अगर हम ओपनिंग लेते हैं तो ओपनिंग की सिचुएशन में जब वो मूव करेगा अलोंग ऑल द डायरेक्शंस, तो जो भी हमारे पास आउटपुट जो इनर साइड्स है वो हमारे पास ओपन आ जाएगा, वो जो डेटा है वहाँ से वो सारा रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम देखते हैं क्लोजिंग रिजल्ट्स एडिंग टू ए those points of the background that are not covered by the translation of B along the outer border of the A। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारे पास आउटर बॉर्डर्स हैं हम उसको क्लोज कर सकते हैं, और क्लोजिंग के लिए हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से हम सिंपली अगर मूव कराते हैं इस डायरेक्शन में तो हम देखते हैं कि जो भी ये वाला एरिया हमारे पास आ रहा है तो वो यहाँ पर फिल हो जाएगा और वो एज अ ऑब्जेक्ट काउंट हो सकता है। हम इसको एज अ क्लोजिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटली हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो एक
तो एग्जैक्टली हम उसके लिए उस किस्म के ऑपरेशन को, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। सेम इस तरह हम बहुत सारे इसके सेट थ्योरी से डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज ले सकते हैं कि लाइक डायलेशन इरोजन आल्सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर डुअल ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लीमेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो हम मुख्तलिफ किस्म के कंप्लीमेंट और रिफ्लेक्शंस को लेते हैं तो उसके डिफरेंट किस्म के रूल्स हम बना सकते हैं कि ए क्लोजिंग बी कंप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो ए कंप्लीमेंट ओपनिंग बी रिफ्लेक्शन अगर हम लें तो इसके इक्वल होगा। सेम इसी तरह हमारे पास ए जो ओपनिंग बी और उसका कंप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो वो इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट क्लोजिंग बी रिफ्लेक्शन। सेम इसी तरह बॉर्डर बिसाइड्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड्स, और ये डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड कर सकती हैं इस ओपनिंग क्लोजिंग, और साथ में अगर हम इरोजन और डायलेशन को लेते हैं तो उस सिचुएशन में ये सारे रूल्स जो हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू होते हैं। अगर हम सिंपल इस पहले रूल को देखते हैं, ए ओपनिंग बी इज़ सबसेट ऑफ ए एंड दैट इज़ सबसेट ऑफ ए क्लोजिंग बी। तो यहाँ पर इस तरह के और भी सारे रूल्स जो हैं हम इन सबको प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जो सम अदर एग्जांपल्स हैं हम उसमें देखते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैन बी यूज्ड फॉर नॉइज़ फिल्टरिंग। द फिंगरप्रिंट इन ए इज़ द इफेक्टेड बाय नॉइज़। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये स्मॉल नॉइज़ है, अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम सिंपली ओपनिंग और क्लोजिंग से इसको कर सकते हैं। फॉलोइंग विद द डायलेशन द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द रिज कैन बी रिकवर्ड एंड द इनर नॉइज इज कंसील्ड। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इनर नॉइज है हम उसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर हम ए लेते हैं इमेज और बी जो है हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है तो हम ए डायलेशन बी लेते हैं, सॉरी ए इरोजन बी लेते हैं, और ए इरोजन बी के बाद हमारे पास ये इमेज आ जाएगी जिसमें ये जो थिन लाइंस हैं ये जो थिक लाइंस हैं वो थिन हो जाएंगी और जो डेटा जो नॉइज़ है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं कि हम बी अप्लाई करते हैं, उसके साथ डायलेशन अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास ओपनिंग के लिए है। और सेम इसी तरह हम इसको मल्टीपल अदर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉइज़ हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द ओपनिंग बट दिस प्रोसेसिंग स्टेज काज्ड इंटरप्शन ऑफ सम रिजेस। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो डेटा है वो मिसमैच हो गया है, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा आ गई हैं। चूँकि ये फिंगरप्रिंट्स हैं तो इसको एग्जैक्ट उसी तरह होने चाहिए, तो उस वजह से हमें इसका एहतियात करना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बाय डायलेटिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द रिज कैन बी रिकवर्ड। हम इसके जो रिकवर्ड किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम डायलेशन प्लस इरोजन क्लोजिंग अप्लाई करें तो उसके लिए हम सिंपल ए ओपनिंग बी और उसका साथ में हम लेते हैं डायलेशन विद बी। तो अगर हम सिंपल इसको अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं एग्जैक्टली वो आ जाते हैं जो ओरिजिनल इमेज के थे, और जो नॉइज़ है वो हमने बड़ी इजीली रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्मेशन की। हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्मेशन इज जनरली बाइनरी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन दैट कैन बी यूज्ड टू लुक फॉर पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड पिक्सल इन एन इमेज। अगर हमने कोई मैच करना है किसी ऑब्जेक्ट को कि क्या ये ऑब्जेक्ट उस इमेज के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए हम हिट एंड मिस को यूज़ करते हैं। हिट एंड मिस ऑपरेशन इज परफॉर्म इन मच द सेम वे एज अदर मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन बाय ट्रांसलेटिंग द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट टू ऑल पॉइंट्स इन द इमेज दैट देन कंपेयरिंग द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विद द अंडरलाइंग इमेज पिक्सल्स। हम इसमें एग्जैक्टली वही करते हैं जो हमने बाकी सारे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में किया कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं और उसको ऑब्जेक्ट के जो बाउंड्रीज़ हैं उसके ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उससे क्या असर पड़ता है। इफ़ द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड पिक्सल्स इन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट
exactly matches foreground and background pixel in the image, then the pixel underneath the origin of the structuring element is set to the foreground color. तो अगर तो वो मैच कर लेते हैं तो हम जो हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो मैच कर रहा है, तो हम बहुत सारे जो उसके बाउंड्री के पिक्सल्स हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं. इफ़ इट डज नॉट मैच देन दैट पिक्सल इज सेट टू द बैकग्राउंड कलर. हम एक छोटी सी एग्जांपल उसकी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमने मैचिंग करना हो मिस और हिट के लिए. तो हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसके सारे फिल रीजन्स हैं. मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास कोई भी नॉइज़ नहीं है या कोई भी होल नहीं आ रहा. तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया और हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है. ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया. तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं, तो वो सारा का सारा फील्ड एरिया है. और अब हम यहाँ पर सिंपली जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है हम उसको लेते हैं. ये हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आ गया और इसमें भी हमने सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया कि ये सारे जो हैं फिल हैं और रेक्टेंगल है और ये हमारे पास उसका सेंटर पॉइंट आ गया. ठीक है, अब इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है हम इसको एज ये पूरे इस इमेज को हम एज ए कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एज इमेज ए है और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है. अब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ बी, या हम इसको एज अ एक्स ले सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है ये हमारे पास बल्कि हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो इस सिचुएशन में हम इसके सेंटर को फिर इग्नोर कर देते हैं. ये क्योंकि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट नहीं है, हम इसको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट स्टार्ट में ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो अगर हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट लेंगे तो हम इसको एज अ एक्स कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास वेरियो एक्स है. अब अगर हम इसको इस ऑब्जेक्ट को मैच करना चाहते हैं इसके साथ कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए हम हिट और मिस के प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे. लेकिन हम देखते हैं कि इस इमेज का कोई बॉर्डर एरिया भी है. तो जो बॉर्डर एरिया है हम उसको काउंट करते हैं एज अ डब्ल्यू कि ये हमारे पास डब्ल्यू है और डब्ल्यू एक्चुअली क्या है वो हमारे पास आता है डब्ल्यू माइनस एक्स. तो ये जो हमारे पास एक्स है अगर हम इसको W माइनस एक्स करते हैं तो ये हमारे पास आउटर रीजन आ जाएगा. अब हम सिंपली क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम इरोजन अप्लाई करते हैं. अगर हम इरोजन अप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास क्या असर पड़ेगा कि ए इरोजन विद एक्स. तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये जितना भी एक्स का एरिया है इसको हम काउंट करते हैं एज अ हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. तो अगर हम इसको अब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के तौर पर काउंट करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके बाहर जो भी एरिया आएगा वो सारा रिमूव होता जाएगा. जो हमारे पास सेंटर पॉइंट्स हैं सिर्फ वो रह जाएंगे. तो हम अब अगर देखेंगे तो ये दो पॉइंट्स जो हैं इस स्ट्रक्चर में रह जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये रिमेनिंग रह जाएगा. अब हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, वी टेक ए कंप्लीमेंट एरोड विद डब्ल्यू एक्स. तो अब हम सिंपल क्या करेंगे कि ए कंप्लीमेंट लेते हैं और उसका इरोजन देखते हैं विद इरोजन ऑफ W माइनस एक्स. तो
W माइनस एक्स हमारे पास क्या था, इसका जो बॉर्डर एरिया था। तो एक का कम्प्लीमेंट लिया और हमने उसका इरोजन देखा W माइनस एक्स के साथ। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स थे ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग है सिर्फ ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे अब ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके साथ वो मैच कर रहा है। तो हम उसका जो सेंटर पॉइंट है इससे ज्यूम करेंगे कि ये वो पॉइंट है जो कि उसका सेंटर आ रहा था। तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट की शेप होगी एग्जैक्टली वही शेप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला इसका आता है तो वो सिंपली ये आएगा, A erosion with X and हम अगर इसका इंटरसेक्शन देखते हैं विद A complement and then erosion with WX, तो ये हमारे पास सिंपल इसका लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा। हम अगर इस सिचुएशन में ये हमारे पास हिट की सिचुएशन आएगी, क्या हिट के सिचुएशन में हम इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम हिट होगा तो वो ऑब्जेक्ट का कोई एक पिक्सल जो है जो नॉर्मली सेंटर पिक्सल है वो हमारे पास विजिबल होगा, वो वाला पॉइंट विजिबल होगा और वो एग्जिस्ट करेगा और बाकी जितने भी होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अगर हम इसको जर्नलाइज करना चाहते हैं तो जर्नलाइज सिचुएशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि B जो है हमारे पास B1 और B2 हो सकते हैं। तो B1 जो है वो हमारा जो इनर पार्ट होगा वो होगा और B2 जो है वो हम इसको कंसिडर करते हैं एज अ आउटर पार्ट जो हमने एज अ W माइनस एक्स लिया। अगर हम इसको इज्यूम करेंगे तो अब इस सिचुएशन में हम जब फाइनल आएगा हमारे पास तो वो आएगा A हिट ऑफ, हम इसको एज अ हिट कंसिडर करेंगे तो हिट के लिए हम स्टार के साइन को लेंगे इज इक्वल टू A erosion B and intersection A complement erosion B2 और ये हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। तो ये अगर हम इज्यूम करते हैं कि अगर B जो है हमारे पास B1 और B2 है और यहाँ पर हम इसको B जो हमने लिया था ये एज ऑब्जेक्ट लिया था और इस ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज टू बी फाइंड डिसजॉइंट रीजन सेट इन द इमेज इफ B donates the set composed of X and its background, the match hit or set of match hits of B is A is for of B in A is हमारे पास आएगा उसका हिट जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं A और ये हमारे पास आ जाएगा erosion of X इंटरसेक्शन विद A complement और इंटरसेक्शन B माइनस एक्स हमने जो लिया था और ये B माइनस एक्स हमने कंसिडर किया था कि ये हम इसको B1 और B2 भी ले सकते हैं। तो सिंपल उसमें एक बाउंड्री के एरियाज आ जाएंगे और दूसरा जो है हमारे पास जो इनर ऑब्जेक्ट है उसके एरियाज आ जाएंगे और हम जो जर्नलाइज फार्मूला है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने डिराइव किया कि ये अब हमारे पास जर्नलाइज फार्मूला है। सो A hit B contains all the origin points at which simultaneously B1 found a hit in A
and B2 found a hit in A complement. सो अल्टरनेटिव डिफिनीशन हमारे पास एक और ये भी हो सकती है कि ए हिट बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इरोजन B1 और फिर हम उसका माइनस हम वैल्यूज़ लेते हैं उसके ए डायलेशन विद बी, हम उसका अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं B2 का रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अ बैकग्राउंड इज नेसेसरी टू डिलीट डिसजॉइंट सेट्स व्हेन वी ओनली एम टू डिटेक्ट certain patterns within a set. A background is not required and simple erosion is sufficient. अब अगर हम बाउंड्री को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ बाउंड्री, तो उस सिचुएशन में हम जो सिंपल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेंगे कौन सा, और हम उसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं. तो हमने बाउंड्री एक्सट्रैक्शन करनी है ऑफसेट ए, तो बाउंड्री एक्सट्रैक्शन के लिए हम साइन को यूज़ करते हैं और उसमें इज इक्वल टू ए माइनस ए इरोजन बी. तो हम इरोजन बी करते हैं और फिर उसको ए से माइनस करते हैं, वेयर बी इज़ द सूटेबल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और बी हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है. तो हम अगर सिंपल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं तो पहले हम इसको परफॉर्म करेंगे. तो इसके लिए हम सिंपल अगर परफॉर्म करेंगे इस इमेज के ऊपर, तो जो भी बाउंड्री के पॉइंट्स है वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और जो ये वाले पॉइंट्स है ये सारे रिमूव हो जाएंगे. अब हमने इन सब को रिमूव कर दिया, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि ए के साथ उसका माइनस ले लेंगे. तो हम जब ए से माइनस करेंगे हम इसको रिमूव इससे माइनस कर देते हैं. तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए डायलेशन बी था. तो अगर हम इससे माइनस करेंगे, अब इस रिजल्ट्स जो हमारे पास आए हैं, जो माइनस किया हमने, तो हमारे पास ये इमेज आ गया. तो इस इमेज से हमारे पास क्या हुआ, हमने बाउंड्री को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया. ये जो पॉइंट्स है ये इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पॉइंट्स है, और ये बाउंड्री पॉइंट हमने बहुत सिंपली एक्सट्रैक्ट किया ऐसे कि ये जब हमने सिंपल इरोजन अप्लाई किया और इरोजन के बाद हमने जो भी आउटपुट रिजल्ट हमारे पास आया उसको हमने ओरिजिनल इमेज से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास बाउंड्री आगे इसको हम स्केलेटन भी कह सकते हैं. इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं इसकी. अगर हम चाहते हैं कि हम बाउंड्री लाइन आइडेंटिफाई करें, तो अगर ये हमारे पास इमेज है और हम करेंगे क्या इसके लिए कि सबसे पहले हम इरोजन अप्लाई करेंगे. तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया हमने और उस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से हमने इसको इरोजन अप्लाई किया और उसके बाद हमने सिंपली जो रिजल्ट आया उसको ओरिजिनल इमेज से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारे पास बाउंड्री लाइन आएगा. अ सिंपल बाइनरी इमेज विद वंस रिप्रेजेंट इन वाइट results of using this same equation that we already talked about. रीजन फिलिंग हम किस तरह करते हैं, हम सिंपली रीजन फिलिंग के लिए भी सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, उसको अप्लाई करते हैं. being with a point P inside the boundary and then fill the entire region with ones. हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट P हम लेते हैं और वो हम बाउंड्री के इनसाइड लेते हैं. तो हम कोई भी पॉइंट हमने लिया और हमने उसको बाउंड्री के इनसाइड लिया. अब हमने बाउंड्री यहाँ से आइडेंटिफाई की और उसके बाद हमने कोई इनसाइड पॉइंट लिया और उसको हमने फिल करना शुरू किया वंस के साथ. लेकिन उसका तरीका क्या होगा, ऑल नॉन बाउंड्री बैकग्राउंड पॉइंट्स आर लेबल 0. जो हमारे पास नॉन बाउंड्री एरियाज हैं हम उसको 0 से रिप्लेस करेंगे. असाइन ए वैल्यू ऑफ 1 टू P टू बिगिन. हम P जहाँ पर भी होगा वहाँ हम उसको 1 असाइन कर देंगे. द फॉलोइंग प्रोसीजर विल फिल द रीजन विद वंस. हम अगर इसको सिंपली इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्स के इज इक्वल टू एक्स के माइनस 1 और डायलेशन B, फिर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए कम्प्लीमेंट का और हमारे पास के जो है वेरी करता है 1 2 3 से, और के क्या है हमारे पास वो पोजीशंस हैं जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वेयर के 0 इज इक्वल टू P एंड P इज द सिमेट्रिक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इन द figure that we already use here. तो अब हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है B और हम उसको हम जो भी पॉइंट इनसाइड लेना शुरू करते हैं हम उसको 1 by 1 इंक्रीज करते जाते हैं.
Algorithm terminates at iteration step k if xk is equal to xk minus 1. तो हम xk minus 1 पर रुक जाते हैं, जो हमारे पास हमने डिफाइन किया होगा कि k उसके कौन सी वैल्यूज़ हैं, कहाँ तक हमने इसको लेकर जाना है. Set union of xk and a contains the filled set and its boundary. Note that the instruction of each step with a complement limits the dilation results to inside the region of the interest. अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे पास इमेज है और हम इमेज में हमने कोई स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया. ये हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है. हमने सिंपली जो बैकग्राउंड है उसको कन्वर्ट कर दिया. जब हमने बैकग्राउंड को कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद हम इनसाइड ऑफ द रीजन स्टार्ट करते हैं. जो इनसाइड रीजन है हमने x0 की सिचुएशन में यहाँ आ जाएगा, x1 की सिचुएशन में यहाँ, x2 ये, और सेम इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे. तो सारे जो रीजन्स हैं उनको हम फिल कर लेते हैं. इसके बाद जब हमने उसको फिल किया तो हम सिंपल उसका इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ, यूनियन लेते हैं a के साथ. तो ये हमारे पास एज आ आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा. इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो बाइनरी इमेज है हमारे पास यहाँ, और हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उस ऑब्जेक्ट्स में ब्लैक होल्स हैं. ठीक है, अब हम चाहते ये हैं कि इन ब्लैक होल्स को फिल करें. तो इसके लिए हम सिंपली कोई भी एक जो सेंट्रल रीजन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हम सिंपल इसको फिलिंग स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ से हमने अगर स्टार्ट किया तो इस एरिया को उसने फिल किया, इसके बाद ये जो एरिया है इसको फिल करेगा, इसके बाद ये एरिया. तो ये सारे एरियाज़ को वो फिल करते हुए आउटपुट पे हमारे पास सारे जो होल्स हैं वो फिल हो जाएंगे. एक्सट्रैक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये भी सिंपल सा हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है. हम सिंपल अप्लाई कर सकते हैं. लेट y represent a connected component containing in a set A and assume that a point P of y is known. Then the following iterative expression yields all the elements of y. So for xk is equal to xk minus 1 dilation with B and intersection with A. k is equal to 1, 2 and 3. और ये हमें पता है कि हम k को वेरी करते हैं सारे उस पॉइंट्स के लिए कि हमने उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को देखना है कि कौन से कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं. वेयर x नॉट इज इक्वल टू p एंड b इज इन सुटेबल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, और हम कोई भी सुटेबल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं. इफ xk इज इक्वल टू xk माइनस 1, तो हम इस सिचुएशन में एल्गोरिथम को द एल्गोरिथम हैज़ converge and we let y is equal to xk. हम इसको असाइन कर देते, सिंपल y को हम xk असाइन कर देते हैं. दिस एल्गोरिथम इज एप्लीकेबल टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कंटेनिंग इन A. तो जितने भी हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे उन सब के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. assume that a point is known in each connected components. और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उस पॉइंट का होना ज़रूरी है कि हम जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं. अब यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि कौन से कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं. उसके लिए सेट ए शोइंग एन इनिशियल पॉइंट ऑफ पी, हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी हमने इनिशियल पॉइंट स्टार्ट किया और इनके साथ हम कनेक्टेड पॉइंट को देखना चाहते हैं. ऑल शेडेड पॉइंट्स आर वैल्यूड 1. हम इन सारे एरियाज को एज अ 1 कंसिडर करते हैं, बट आर शोइंग डिफरेंट फ्रॉम पी टू इनसाइड दैट दे हैव नॉट बीन येट फाउंड बाय एल्गोरिथम. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अब हम इन सब को ट्रैवर्स करना देखेंगे कि क्या ये आपस में कनेक्टेड है क्या नहीं. ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आ गया, और यहाँ पर हमने y को कंसिडर किया कि हम y देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पर है. जो y की वैल्यू है हम उसको यहाँ से देखते हैं कि ये सारे वो वाले पॉइंट्स हैं जिनकी कनेक्शन हम देखना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर. सो नाउ जो हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ द स्टेप्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि हम यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया तो उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखे, फिर साथ में इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखे, और इस तरह हम मूव करते गए और सारे जो भी हमारे पास
कनेक्टेड कंपोनेंट्स थे जो आपस में मिलते थे, हमने उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया। ये हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्सरे इमेजेस हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या कौन से पार्ट्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास एक एक्सरे इमेज है और जिसमें डिफरेंट बोन्स हैं, तो हम उन बोन्स को आइडेंटिफाई अगर करना चाहते हैं और उसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स को काउंट करना चाहते हैं तो हम सिंपल इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर्स आ जाएंगे और ये हमारे पास वो y की वैल्यूज़ हैं कि y की जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो 0 1 के लिए 11 कंपोनेंट्स हैं और सेम इसी तरह पिक्सल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम थिनिंग किस तरह करते हैं, इसके लिए भी सिंपल हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। थिनिंग ऑफ अ सेट ए थ्रू बी, अगर हमने ए को थिन करना है बी के थ्रू तो बी हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। बी डायलेशन ए डायलेशन बी कैन बी डिफाइंड एज ए डायलेशन बी। यहाँ पर सॉरी ये डायलेशन नहीं, हम यहाँ पर थिनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम सिंपली इसको एज अ क्रॉस कंसिडर करते हैं। तो थिनिंग के लिए इज इक्वल टू ए माइनस ए, हम हिट आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ बी और फिर वो इक्वल हो सकता है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए हिट बी, उसका कम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं। तो ये हम इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं, या ये हो सकता है हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अ हिट और मिस ट्रांसफॉर्म here used does not require the local background. Sometimes defining different structuring element for different direction, तो अगर हमने different direction के लिए thinning करना है तो उसके लिए हम जो b है हमारे पास वो एक वैल्यू पर नहीं होगा, हम उसको मल्टीपल ले सकते हैं। तो b is equal to b1 till bn can be simply the producer, they are applied in a sequence। और अगर हमने इसको अप्लाई करना है तो फिर हम जो थिनिंग के लिए ए थिनिंग बी करेंगे तो वो सिंपल बी जो है वो सेट होगा, और वो सेट क्या होगा, ए थिनिंग b1 करेंगे, फिर सेम इसी तरह हम बी उसकी थिनिंग करेंगे b2 के साथ, जो उसका आउटपुट आएगा उसकी थिनिंग b3 के साथ करेंगे और इसी तरह हम करते जाएंगे। देन द रिजल्ट कैन बी फर्दर प्रोसीड फॉर अवॉइडिंग मल्टीपल पाथ्स एम कनेक्टिविटी। अब ये हमारे पास सिंपल उसके एग्जांपल है। अगर ये इमेज है और हम इसको थिन करना चाहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको थिन करना चाहते हैं जो डार्क एरियाज में है, तो उसके लिए हम मल्टीपल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमने सिंपली इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को रोटेट करते जा रहे हैं और हम मल्टीपल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट देखना चाह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हम इस इमेज को हर डायमेंशन से थिन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम b1 जब लेते हैं तो हम इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, और ये जो 2 पॉइंट्स है इसकी हमें कोई परवाह नहीं, हम इसको कंसिडर नहीं करते, और ये जो पॉइंट्स है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको सिंपल रोटेट करते हैं सेंटर से। तो हम अगर इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो सिंपली इसकी रोटेशन इस तरह आ जाएगी, ठीक है। फिर हम इसको आगे रोटेट करते हैं तो इधर आ जाएगा, सेम इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, और हम सेम इसी तरह रोटेट करते जा रहे हैं। तो अब ये B8 तक हमारे पास सारे थिनिंग के जो हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आ गए। अब अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो ए पर अगर हम B1 अप्लाई करते हैं तो जो ये हमारे पास जितने भी बॉर्डर लाइंस हैं हम उन सबको रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद अगर हमारे पास जो आउटपुट रिजल्ट आएगा उसके बाद हम उस पर B2 अप्लाई करते हैं जब हम इस एंड तक पहुंचते हैं। तो B2 अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने रिमूव कर दिया। सेम इसी तरह हम जब भी उसके बाद इसके ऊपर जब हम B3 अप्लाई करेंगे तो B3 अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं जो हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखे जिसको हमने रिमूव किया। सेम इसी तरह B4 के रिजल्ट्स देखते हैं तो हम यहाँ पर उसके रिजल्ट्स देखते हैं। सेम इसी तरह हम B5 के देखते हैं तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा उसकी एलिमिनेशन हुई है। सेम इसी तरह हम
आगे करते जाते हैं तो हमारे पास टिल B8 जो है हम यहाँ देखते हैं कि हमारे टोटल रिजल्ट जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, और हमने इस टोटल चेंजेस देखते हैं कि इसके बाद और कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो हम वापस स्टॉप कर लेते हैं। सो A86 कन्वर्ट टू बी M कनेक्टिविटी। हम देख सकते हैं कि जितने हमारे पास पॉइंट्स हैं वो आपस में M कनेक्टिविटी के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। थिकनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम सिंपल उसको थिक करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम जो साइन यूज़ करेंगे वो हमारे पास ए सर्कल के अंदर हमारे पास डॉट हो तो हम उसको कंसिडर करते हैं। तो थिकनिंग के लिए हम सिंपल देखेंगे कि दोबारा हम हिट को यूज़ करेंगे। सो ए यूनियन हिट, ए हिट बी हम कंसिडर करते हैं। द हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर द लोकल बैकग्राउंड। सो इट इज़ द डुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिनिंग। सो हम चूँकि यहाँ पर डुअल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, थिनिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसको भी हम मल्टीपल लेते हैं, तो B1 B2 और इसी तरह मल्टीपल B के वैल्यूज़ आ सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर ओरिजिनल इमेज है और हम इसको थिक करना चाह रहे हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगी। और सेम इसी तरह हमारे पास स्केलेटलाइजेशन है। स्केलेटलाइजेशन के लिए भी हम सिंपल जो एल्गोरिथम है उसको यूज़ करते हैं, और वो है स्केलेटलाइजेशन इज़ SA ऑफ अ सेट। A can be intuitively defined as the center of the minimum collection of circles disk that covers A. More formally, the concept of maximum disk has to be defined. A disk DZ positioned in Z is a member of A in Z maximum if no other disk completely in A that contain DZ can be positioned. And the skeleton of A, S skeleton A can be defined as S skeleton A, Z is a member of A such that DZ is maximum disk in A. तो यहाँ पर हम सिंपली जो मैक्सिमम डिस्क साइज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम वो आइडेंटिफाई कर ले तो हम वहाँ पर अपने प्रोसेस को रोक लेते हैं। सो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल डिफिनीशन स्केलेटनाइजेशन की ये आ सकती है कि एस स्केलेटन ऑफ ए इज़ इक्वल टू, हम सिंपली उसका यूनियन लेते हैं अनटिल के इज इक्वल टू 0 टू के एस के ऑफ ए। तो हम सिंपल इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे तो हम स्केलेटलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और आज हमने जो कवर किए वो मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस थे जो कि बहुत यूज़फुल हैं और इम्पोर्टेंट हैं मल्टीपल इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक्स कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।